ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਦੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਥ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 27 ਸਾਲ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਅਫੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪਪੂਲਰ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਬੇਸਿਸ। ਜੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। people are absolutely right in questioning ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੇ ਕਨਕਲੂਡਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਫੈਂਸ ਤੇ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। which will give a sense of fair probe to the parents also, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ aggrieved parties ਨੇ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਪੰਨੂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਫॉर ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰ ਅਲਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਹੈਡਲੈਸ ਚਿਕਨ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ।
ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਔਰ ਨਾਟ, ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਅ ਲੈਸਰ ਈਵਲ। ਜੇ ਅੱਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸ ਇੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸੇਫ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ। ਵੀ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਨਮੀ ਸਟੇਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ, ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਟਲੀਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਨ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਸੇਫਟੀ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਬਾਈਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਆ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਤੇ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਫੇਵਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਿਰ 4 ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ।
जी कि भाई ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੇਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਂਡਗਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਂਡਗਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਾਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੀ ਬਟ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਗਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੈਂਡਗਨਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡਗਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀਅਰ ਆਰਮਸ, ਜੀ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਆਰਮਸ ਲੌਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ। जी बिल्कुल। सर नेशनल सेगमेंट पर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज शिमला में आए हुए हैं सर, और शिमला में कई उन्होंने रैली में कई बातें कही और कई उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई अपनी सरकार की, और उन्होंने पिछले 8 साल में सेंटर में भी और हिमाचल में भी जो जो काम किए वो बताए लोगों को। देखो आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए जी। इसको देखने के दो तरीके हैं। एक है कि अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी सेकंड टर्म चल रही है और वो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, पर बीजेपी इसको बड़े अलग तरीके से देखती है। जी। बीजेपी इसको देखती है कि दिस इज द स्टार्टिंग एरा ऑफ अ लॉन्ग टाइम रूल ऑफ बीजेपी। जी। नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं बीजेपी में। जी। एक तो बीजेपी में यूनिटी दिखाई दी, लीडरशिप कंसोलिडेट हुई। जी। इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट्स आती थी उनके आपस में फ्यूड रहते थे, जिसके कारण आरएस का इन्फ्लुएंस बीजेपी पे बहुत ज़्यादा रहता था। जी। आज नरेंद्र मोदी के कारण आरएसएस का भी इन्फ्लुएंस बीजेपी के ऊपर कम है। जी। वो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी, स्टिल उनकी एक जो है आइडियोलॉजिकल भाईचारा है, राइट? उनके क्लोज, ऑफ कोर्स इसको कोई डिनाई नहीं करता, बट एट द सेम टाइम आज बीजेपी एक एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत रोबस्ट और स्ट्रांग हो गई है। जी। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि इवन एट द टफ टाइम्स उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो स्ट्रक्चरली इंडिया को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकते हैं। जी। उन्होंने टफ डिसीजन लिए हैं जिसके कारण ओपोजिशन ने बोला था कि अब उनको वोट नहीं मिलेगी। जैसे नोटबंदी उन्होंने की, जी। टैक्सेस, पेट्रोल प्राइसेस हाई रखे, जी। राइट? और इसके कारण वो स्ट्रक्चरली लोगों को बेसिकली जोड़े रख सके और टफ डिसीजन लोगों से सैक्रिफाइस एलिसिट कर पाए। उन्होंने लोगों को बोला कि भाई हम ये टैक्स ले रहे हैं बट दिस इज हाउ नेशन विल बी बिल्ड। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की फिर उन्होंने बात शुरू की हो। जी। और एक, हालांकि वो थोड़े से राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती थी, पर उन्होंने सोशल वर्क पे बहुत फोकस किया। इस वक्त उनकी अलग अलग स्कीम्स के अंदर रफली 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, जिसको वो लाभार्थी बोलते हैं, जी, उनको बेनिफिट मिल रहे हैं अलग अलग स्कीम के अंदर। जी। इसके कारण उनका बेस बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गया है। स्पेशली अगर मैं वुमेन की बात करूं, इस बार यूपी इलेक्शन में जो उन्होंने हिस्टोरिकली सेकंड मैंडेट जो जीता है, और बीजेपी एक कंसिस्टेंट इलेक्शन मशीन बन गई है। दे आर ऑलवेज इन दैट इलेक्शन मोड, बट एट द सेम टाइम ट्राइंग टू मेक, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो हमारे डिफेंस की, चाहे हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हों, चाहे फॉरेन कंट्रीज का टाई अप हो, इन सब चीज़ों में नो डाउट मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें की हैं। जी। एट द सेम टाइम अब हिमाचल में भी इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए हिमाचल को और हिमाचल में आज इस पीएम की रैली आने के बाद एक मैसेज ये जाता है कि क्योंकि लोगों का ध्यान एक नेशनल व्यू की तरफ चला जाता है। जी। जो हिमाचल के कई छोटे मुद्दे भी होते हैं, जो चाहे लोकल लेवल के मुद्दे होते हैं, जनता का ध्यान उससे हट जाता है। जी। तो इस इलेक्शन के टाइम पे स्पेशली इस साल हिमाचल में इलेक्शन होने हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे रैली करते हैं और बीजेपी की जो अचीवमेंट्स वो गिनाते हैं पिछले 8 साल की, उससे हिमाचल बीजेपी को अगले इलेक्शन में बहुत फायदा होने वाला है। जी। वो पूरी की पूरी उनकी पार्टी और काडर को गैल्वनाइज कर देते हैं।
सर पीएम की इस रैली का हिमाचल के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, एक चीज़ ये है कि एक तो ये चीज़ दिखाता है प्राइम मिनिस्टर का भरोसा सीएम जयराम ठाकुर के ऊपर जी कि वो उनकी लीडरशिप, जो स्टेट लीडरशिप है, जो उन्होंने वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो हिमाचल में प्रोग्रेस के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, चाहे टूरिज्म से रिलेटेड हो। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे कोरोना रहा, तो वो जो चीज़ें इनिशिएटिव्स जो उन्होंने लिए हैं, ये एक भरोसा दिखाता है। पिछले कुछ टाइम से हर बड़े इवेंट पे जो भी नेशनल लेवल बीजेपी का हुआ है, उसमें जयराम ठाकुर जी की इन्वॉल्वमेंट रही है। जी तो एक तो इससे जयराम ठाकुर और उनकी टीम को बहुत हौसला मिलेगा जी कि भाई पीएम और जो बीजेपी की लीडरशिप है, चाहे उनके प्रेसिडेंट नड्डा साहब, उनकी उनको फुल फ्लैज सपोर्ट है कि वो जो भी प्रोग्रेस के कार्य कर रहे हैं उसको आगे करते रहें। जी इससे अब पीएम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ की जनता को गैल्वनाइज करते हैं, उनमें एक जोश डालते हैं। ही इज सच ए कम्युनिकेटर, और एज अ नेशनल लीडर वो जब पूरी प्रोग्रेस दिखाएंगे हिमाचल के लिए भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हमेशा वहाँ की जनता भी सोचेगी, क्योंकि अभी सेंट्रल पॉलिटिक्स में बीजेपी को हरा पाने के सारे एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। जी तो जब स्टेट और सेंटर में सेम गवर्नमेंट्स होती हैं तो उस स्टेट को बेनिफिट मिलते ही हैं। बिल्कुल। और पीएम का उस स्टेट में आके अनाउंस करना इलेक्शन से पहले, मेरे को ये लगता है कि इट विल बी अ ह्यूज बूस्टर फॉर द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, फॉर द जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वहाँ पे अगर आप एक सस्टेनेबल वर्ल्ड क्लास टूरिज्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है आज की डेट में सेंटर की हेल्प के बिना वो हो नहीं सकता। हमारे जो भी एम्बेसीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, हिमाचल को उन सब से टाई अप करके हिमाचल को एक स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्विट्जरलैंड के लेवल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हम देखते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं जो हो रही है, तो मेरे को लगता है कि हम जितना रेवेन्यू स्विट्जरलैंड जनरेट कर रहा है उतना रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश भी जनरेट कर सकता है। आज अगर मैं स्विट्जरलैंड क्लोज टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है और यूपी ने भी रिजॉल्व लिया कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हिमाचल क्यों नहीं बन सकता? जी। तो ये सारी चीज़ें हिमाचल के लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती हैं। सर यही कारण है कि हार्दिक पटेल जो कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस में उन्होंने छोड़ दी थी कुछ दिन पहले, और वो बीजेपी आना उनका तय हो गया। देखो, ये सब नेता हैं। अब मैं बीजेपी की एक और बात आपको बताता हूँ। बीजेपी की बात कर रहे थे जी। बीजेपी ने एक चीज और की, जीतने के लिए नेता चाहे दूसरी पार्टी के हों, जिनके साथ उनका आइडियोलॉजी, अब हार्दिक पटेल की जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से बिल्कुल मेल नहीं खाती जी। पर आज बीजेपी कहती है कि आप जुड़ो जी, क्योंकि आपके साथ वोटर जुड़े हुए हैं, बट इस डिसिप्लिन के बीच में काम करना है जी। तो वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो स्टेट आफ्टर स्टेट इलेक्शन जीतें, चाहे बंदे की आइडियोलॉजी अलग है, पर जब तुम बीजेपी का पार्ट बनोगे तो बीजेपी के डिसिप्लिन के हिसाब से चलोगे जी। ये भी एक स्ट्रेंथ बीजेपी की रही है। अब हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं मैंने 3 साल कांग्रेस में वेस्ट कर दिए जी। ये अब कांग्रेस में ऐसे बड़े नेता निकलेंगे जिनको सडनली कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज अच्छी लगनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं पे जीत नहीं रही है। बिल्कुल। उनको अचानक लीडरशिप में जो ट्रस्ट था, जिनकी वो कस्में खाते थे, जिनके लिए वो खुद उठ उठ के उनके लिए खाना पेश करते थे, आज उनको उन सब से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उनको राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के लीडरशिप और नेतृत्व में अब डाउट आना शुरू हो जाएगा जी। क्योंकि उनको कहीं और से एक ऑप्शन दिख रही है। बिल्कुल। तो ऐसे नेता आइडियोलॉजिकली तो किसी भी पार्टी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट अब दूसरी पार्टियों की भी मजबूरी होती है कि जिसका एक सर्टन वोट बेस होता है, आपको अगर इलेक्शन जीतने हैं तो इन लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो आज पॉलिटिक्स में एक डुअलिटी आ गई है कि इलेक्शन जीत के ही आप देश के लिए कुछ कर पाओगे, तो इसके कारण वो सब कुछ जस्टिफाइड करने की हर पार्टी कोशिश कर रही है, जो मेरे को लगता है कि आइडियली ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। सर अब नेताओं की बात हुई है तो एक नेता हैं सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इससे पहले पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर पर आरोप लगे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। देखो, सत्येंद्र जैन पे इंक्वायरी काफ़ी देर से चल रही थी जी। आम आदमी पार्टी की 2 सरकारें हैं, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर अंदर हैं इस वक्त जी। ये एक बहुत ही अजीब सी बात लग रही है, पर जो पंजाब के उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं उसको सीएम ने खुद उन पे केस FIR दर्ज करवा के अंदर करवाया और यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करवाया जी। और आम आदमी पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि उन पे ज़बरदस्ती के गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उनका इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है जी। तो अब 8 साल से अभी ये कुछ इंक्वायरीज और लेटेस्ट शुरू हुई हैं, पर पिछले 8 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। कोइंसिडेंटली आम आदमी पार्टी जब पहली बार पावर में आई थी और जब मोदी जी पावर में आए थे वो सिमिलर टाइम पे आए थे जी।
तो अब ये तो देखिए कहना इनिशियली एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि वो कुछ सवालों का जवाब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये एसेट्स बेनामी कंपनियों के पास के थ्रू उनके पास कैसे आए, मनी ट्रांसफ़र कैसे हुई, इन सब चीज़ों का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और आई होप जस्टिस विल प्रिवेल, और जो भी बात हो जल्दी से जल्दी, अगेन जब नेताओं से रिलेटेड केस हो ना, वो 6 महीने के अंदर सॉर्ट आउट करने चाहिए। 8-8 साल नेताओं को तो एक तरीके से वो कंफर्टेबल हो गए हैं कि भाई ठीक है, हमारा लॉयर है, केस देखता रहेगा, केस जितने मर्जी करते रहो और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वो गिल्टी है जी, पर अभी ए प्रायोरी अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर केस बना है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब चीज़ें साफ साफ बाहर आनी चाहिए। और अगर वो गिल्टी है नहीं है, 6 महीने के अंदर ये एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि नेता अपनी नेतागिरी ना करता रहे। और कोई इससे दूसरा फायदा नेताओं को भी है कि अगर वो बिल्कुल ईमानदार हैं तो उनको सजा भी नहीं होगी। तो ये एक रिफॉर्म ये भी चाहिए जुडिशरी में कि जैसे आपने एनआरआई कोर्ट बनाया ना जी, ऐसे पॉलिटिशियन कोर्ट बनाओ जी, कि 6 महीने के अंदर पॉलिटिशियन के केस का निपटारा होगा, राइट, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी बिल्कुल सर। सर एक कश्मीर से खबर आई है, कश्मीरी एक हिंदू टीचर थी रजनी बाला, उनकी हत्या कर दी गई टेररिस्ट की तरफ से। देखो, जो कश्मीर में जो लोग ये आतंकी हमले कर रहे हैं, जो वहाँ पे अनरेस्ट कर रहे हैं, उनका पर्पस देश को स्टेबलाइज करना है जी, राइट। वो आज धर्म के नाम पे कर रहे हैं, कल को अगर वो नहीं होगा तो वो अपने लोकल रेजिडेंट्स को भी मारेंगे, और ये भी हमने देखा है जी, पर इस बार जो धारा 370 हटने के बाद और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, अगर आप ट्वीट देखेंगे जो वहाँ के पुलिस हेड का जो ट्वीट आया इस केस के बारे में, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि हम जल्दी ही इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे जी। इसका मतलब गवर्नमेंट और पुलिस फोर्सेस क्लियर हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जाएंगे जी, उनको जेल में बिठा के फ्री का खाना नहीं खिलाया जाएगा जी, और मेरे को ऐसा लगता है इसी तरह से आप इस तरह की इंसर्जेंसी को बेसिकली ख़त्म कर सकते हैं जी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि भाई, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक स्टेप लेते हैं, जब एक देश स्टेप लेता है अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ, तो दुश्मनों का भी एक रिजॉल्व होता है जी, उनको लगता है कि ये स्टेप, आज पाकिस्तान भी बोल रहा 370 हटा दो, 370 वापस ले आओ, जी, अब पाकिस्तान अगर कोई चीज़ बोल रहा है समझ लो वो आपके हित में। जी, धारा 370 जो एक ब्रिज था जोड़ने का, वो आपस में एक दीवार का काम करना शुरू कर दिया उसने पिछले कुछ दशकों से। जी, उससे क्या हुआ कि कुछ नेताओं को बहुत बेनिफिट होने शुरू हो गए, उनकी फैमिलीज को कुछ बेनिफिट होने शुरू हो गए। आज जब 370 हटा है, जिसका बेनिफिट इंसर्जेंसी ले रही थी, अब उनको नुकसान हो रहा है। जी, वहाँ पे धीरे धीरे आएगी प्रोग्रेस, पर एक बार तो जो लोग इतनी देर से उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, एक बार तो वो ये प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि आपका ये स्टेप फेल हो जाए। वो आपकी विल पावर, इस वक्त ये हमारी नेशनल विल पावर चेक हो रही है जी, कि वो कब तक हम पे हमले करते रहेंगे। जी, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगता है कि अगले कुछ टाइम में, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, 1 से 2 सालों में आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आ जाएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आनी ऑलरेडी सर्टन रीजन्स में शुरू हो गई हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लॉट बेटर हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर अब ताइवान की हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले ही, यूएस ने भी चाइना को कहा था, सीधा सीधा कहा था कि अगर आप ताइवान में इंटरफेयर करेंगे तो यूएस की तरफ से भी मिलिट्री रिस्पांस दिया जाएगा। पर चाइना ने ये किया कि 30 वार प्लेन वो उनके एयर स्पेस में घुस गए ताइवान में। आज ही का इंसिडेंट है। देखो, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ताइवान उन्हीं की एक स्टेट है जी, और जब 1970 में अमेरिका को चाइना की ज़रूरत थी, उनके इंटरेस्ट मिल रहे थे, प्रेसिडेंट कार्टर थे तब, जी, तो एक वन चाइना पॉलिसी के तहत जो कंट्री चाइना से डील करना चाहती थी वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान से नहीं रख सकती थी। जी, बट ताइवान ने भी एज अ कंट्री, दे वर ऑल्सो वेरी रिजिलियंट, रिसोर्सफुल। उन्होंने थ्रू कल्चरल ट्राइज, थ्रू अदर थिंग्स, उन्होंने अपने आप को एक अच्छी इकॉनमी अपनी क्रिएट की। जी, और आज जब अमेरिका और चाइना के रिलेशन एट द लोएस्ट पॉइंट है, जी, तो अमेरिका ने चाइना को चेक में रखने के लिए क्लियर कट ये स्टेप लिया है। जी, अब चाइना पिछले 2-3 सालों से कॉन्टिन्यूसली ऐसी एयर रेड्स करता रहता है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट अटैक रेड्स, सॉटीज करता रहता है, वहाँ पे सॉटीज करता रहता है उनकी एयर स्पेस के अंदर भी। इस बार तो उनकी ये इंटरनेशनल एयर स्पेस जो मॉनिटर करते हैं देश, जो उनकी इमीडिएट एयर स्पेस के साथ होती है, ये उस वहाँ तक जहाज़ गए थे।
जी। क्योंकि अगर वो उनकी एयर स्पेस के अंदर जाते हैं तो उसको अटैक माना जाता है। जी। तो फिर ताइवान का राइट बनता है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने का, रिटेलिएट करने का उनका पूरा हक बनता है उसके ऊपर। जी। तो ये एक, मेरे को लगता है ये चाइना के लिए एक दुविधा है। जी। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई ताइवान को चाइना से, वन चाइना पॉलिसी जो विजन है उनकी वो यही है कि ताइवान और काफ़ी एरिया से हमारे साथ जोड़ने चाहिए। पर मेरे को ये लगता है कि अल्टीमेटली चाइना के फॉल का यही पॉलिसी सबसे बड़ा रीज़न बनेगी। जी। आज उनका देश प्रोग्रेस कर रहा है, दे वर अ गुड रिसोर्स सेंटर फॉर एवरीवन। आज पूरी दुनिया चाइना के ऊपर उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है। जी। वो इंडिया की तरफ देख रही है कि हम उनका पैरेलल सप्लाई चेन बनाएं। वो इंडिया को उनका काउंटर बैलेंस भी देख रही है, जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। तो चाइना के जो टॉप लीडरशिप है, उनका जो हेजेमोनिक माइंडसेट है, वही चाइना के फॉल का कारण बनेगा। आज वहाँ की ग्रोथ अगर आप देख ले, पिछले क्वार्टर की बिल्कुल लोएस्ट है। जी। कोई उनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। आज यूएस ने, अगर थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट ने सीधी सीधी धमकी दे दी कि अगर आप मिलिट्री एक्शन लेते हो तो हम भी मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो ये जो वन चाइना पॉलिसी है, ये अगले 10 सालों में चाइना के फ्यूचर को बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली है। हेजेमोनिक माइंडसेट आज की दुनिया में इस वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं चल सकता। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। इस तरह की और इनसाइट्स लेके आते रहेंगे, देश दुनिया के बड़े मुद्दों पे बात करते रहेंगे। देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।